the next portion from the stereochemistry, that is optical activity. So what optical activity, that it is a property of a particular compound. That compound should be chiral. So only chiral compound which show this activity now. That's why the necessity condition for optical activity, the compound should be a chiral. Only chiral molecules are able to show this activity. It is just like a physical property of a particular compound. And in stereochemistry, what optical activity is very important. Okay, so by using that optical activity, we can decide its rotation about the plane polarized light. Okay, and we can decide the angle of rotation also with the help of the polarimeter. So optical activity is only shown by chiral molecules. Those molecules are chiral. Chiral molecule means must have the asymmetric center. Must have asymmetric center. Those molecules are called as a chiral molecules. When these chiral molecules are placed in the polarimeter, placed in the what? Polarimeter, what happen now? They will rotate the plane polarized light toward either on right side or either on the left side. It depends upon the angle of rotation. Now we are going to classify these molecules on the basis of what? Their angle of rotation. Example, look like this one now. So if that light, that is plane polarized light, is going to rotate in this manner, if it is going to rotate on the right side or clockwise direction, then it is called as a dextro rotating molecule. And if it is going to left side, it is called as a LEO. Dextro and LEO are stands for the clockwise and anti-clockwise direction. Sometimes dextros are indicated by positive sign and LEOs are indicated by negative sign. Okay, then what happened in the polarimeter now? In polarimeter, so we'll see the what instrument now. Okay, how it works now. First of all, what is optical activity now? It is a property of a particular compound when it is respond to polarimeter. एक टाइप की प्रॉपर्टी है जब हम किसी कंपाउंड को, कौन सा कंपाउंड चाहिए हमारे पास, which compound you be needed now, that compound should be a chiral. And what is that chiral now? The chiral molecule should have the asymmetric center. If molecule have asymmetric center, that molecule is called as a chiral molecule, and that compound is going to be placed in the polarimeter. So polarimeter is the device which check the optical activity. क्या करता है ये? ऑप्टिकल एक्टिविटी चेक करता है. और ऑप्टिकल एक्टिविटी किससे रिलेटेड होती है? इट इज रिलेटेड टू एब्जॉर्बेंस ऑफ लाइट नाउ. ओके, फिर जो एंगल ऑफ रोटेशन है यहाँ पे, वो किस डायरेक्शन में जाता है आपका, वेदर इट इज ऑन राइट साइड, वेदर इट इज ऑन लेफ्ट साइड, ऑन दैट बेसिस वी आर डिसाइडेड. और हमेशा क्या होता है, जो कायरल कंपाउंड है उसके दो इनैंशियोमर्स होते हैं, E1 एंड E2. तो E1 जो है अगर सपोज राइट साइड में रोटेट हो रहा है तो E2 कहाँ जाएगा आपका? लेफ्ट साइड में जाएगा. और जहाँ पे E1 E2 मिक्स होते हैं उनको बोलते हैं अपन रेसिमिक मिक्सचर. E1 एंड E2 जब रहेंगे उनको क्या बोलेंगे अपन? रेसिमिक मिक्सचर. यानी कि पॉजिटिव नेगेटिव. पॉजिटिव किसके लिए? E1 के लिए. नेगेटिव किसके लिए? E2 के लिए. जब ये दोनों सेपरेट रहेंगे तब हम उसको एक्टिव प्रोडक्ट बोलेंगे, एक्टिव फॉर्म बोलेंगे. और जब दोनों कंबाइंड रहेंगे सो दैट विल बी कॉल्ड एज ए रेसिमिक मिक्सचर. सो द प्लस एंड माइनस इंडिकेट दैट, क्या बोलते हैं इसको? रेसिमिक मिक्सचर. ओके, डेक्स्ट्रो जनरली इंडिकेटेड बाय स्मॉल डी. डेक्स्ट्रो को इंडिकेट कैसे करते हैं अपन? स्मॉल या फिर पॉजिटिव साइन से. और लियो मतलब होता है स्मॉल एल या फिर नेगेटिव. ओके, देन व्हाट इज ऑप्टिकल एक्टिविटी नाउ? ऑप्टिकल एक्टिविटी इज अ प्रॉपर्टी ऑफ एक पर्टिकुलर कंपाउंड व्हिच रोटेट दैट प्लेन पोलराइज्ड. अब ऐसा लाइट जिसका किसको बोलते हैं अपन? प्लेन पोलराइज्ड लाइट. जनरली एग्जांपल मैं यहाँ पे एक छोटा सा आपके पास एक्सपेरिमेंट बताऊंगा. सपोज अगर मेरे पास एक लाइट दिया हुआ है. अब ये जो लाइट है ऑर्डिनरी लाइट लिया मैंने, जिसका पोलराइजेशन जो है हर एंगल में रहेगा, हर तरफ रहेगा, राइट? तो इसको मैं प्लेन पोलराइज्ड लाइट नहीं बोल सकता. दिस इज जस्ट ऑर्डिनरी लाइट ना. दिस इज व्हाट? ऑर्डिनरी लाइट. लेकिन जब मैं इसके सामने प्रिज्म वगैरह कुछ रखता हूँ, एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट जो कैल्शियम कार्बोनेट वगैरह का बना रहेगा, ठीक है, जब इसको रखने के बाद क्या हो जाएगा, जो ऑर्डर ऑफ रोटेशन, ये जो है एंगल ऑफ रोटेशन जो है, सॉरी, इसका लाइट का जो डिफ्लेक्शन है वो किसी एक एंगल में होगा. सो पहले वाली लाइट में और ये वाली लाइट में बहुत फर्क. सो पहले वाला क्या हो रहा है? पहले वाला क्या बोलेंगे? सो दिस इज अ लाइट व्हिच इज कॉल्ड ऑर्डिनरी लाइट व्हिच रोटेट और व्हिच पोलराइज्ड इन ऑल द डायरेक्शन. यहाँ पे क्या हो जाएगा? दिस इज व्हाट? पोलराइज्ड इन ऑल डायरेक्शन. पोलराइज्ड इन ऑल डायरेक्शन. फिर मैंने क्या किया, उसको ट्रांसफॉर्म किया किसमें, किसके थ्रू उसको ये किया है, पास किया उस लाइट को प्रिज्म के थ्रू. प्रिज्म का काम क्या होता है कि उस लाइट को एब्जॉर्ब करना, और उस लाइट को एब्जॉर्ब करने के बाद वो किसी एक डायरेक्शन में उसको पोलराइज करना. और ऐसे लाइट को हम बोलते हैं पीपीएल, प्लेन पोलराइज लाइट.
ओके, जिसका पोलराइजेशन सिर्फ किसी एक पर्टिकुलर एंगल में होता है. ओके, एंड दैट प्रिज्म इज इन्वेंटेड बाय निकोल, दैट्स कॉल्ड द निकोल प्रिज्म. नाउ ये सब इंस्ट्रूमेंट में नहीं रख रहे हो जिसको, ये सब पोलरीमीटर में आपने कभी लैब में देखा होगा, आपको पोलरीमीटर दिखेगा जिसमें एक सोर्स होता है, जो सोर्स सबसे पहले तो हर एक ऑल डायरेक्शन में वो लाइट को पोलराइज करता है. पोलराइज करना मतलब वहां से रेडिएशन निकलते हैं लाइट के, इसको अपन वेव्स भी बोल सकते हैं. फिर उसको निकोल के थ्रू हम क्या करते हैं, एक डायरेक्शन में लाते हैं, दैट्स कॉल्ड द प्लेन पोलराइज्ड लाइट. अब क्या होता है, द नेक्स्ट पार्ट इज व्हाट, योर सैंपल. फिर सैंपल कैसे है तुम्हारा, सैंपल मतलब यहाँ पे मैंने सैंपल रखा हुआ है, सपोज आई हैव द सैंपल एट हियर, दिस इज माय कॉल्ड एज ए पाथ लेंथ. इसके अंदर कौन रखा हुआ है तुम्हारा, दिस इज व्हाट सैंपल. अब सैंपल ऐसा होना चाहिए, वो लाइट को रिस्पॉन्ड कौन करेगा, अगर इस सैंपल में कायरल सेंटर होगा तो, अगर ये मॉलिक्यूल आपका ऑप्टिकली एक्टिव होगा तो वो लाइट को रिस्पॉन्ड करेगा, नहीं तो नहीं करेगा. नाउ लुक एट द नेक्स्ट पार्ट, आफ्टर पासिंग लाइट टू दिस सैंपल व्हाट हैपन नाउ, दिस इज द, now if this compound is optically active, then it rotate that light toward a particular angle now, either clockwise or what, clockwise जाएगा, या तो फिर कैसे जा सकता हूँ, या तो जाएगा एंटी क्लॉकवाइज. ओके, सो इफ योर कंपाउंड इज ऑप्टिकली एक्टिव देन इट रिस्पॉन्ड टू दैट लाइट. नाउ वो रोटेट करेगा, अगर कंपाउंड आपका ऑप्टिकली एक्टिव है नहीं तो वो क्यों रोटेट करेगा, वो करेगा नहीं, वहीं पे आपकी केमिस्ट्री खत्म होगी. सो दो जो आपका एनांशियोमेरिक फॉर्म रहेगा, अगर वो राइट साइड में रोटेट करता है, सो दैट विल बी कॉल्ड एज अ डेक्स्ट्रो रोटेटरी. इसको हम क्या बोलेंगे, इट इज कॉल्ड डेक्स्ट्रो रोटेटरी, डिनोटेड बाय स्मॉल डी, एंड यू कैन आल्सो मेंशन द साइन इज व्हाट, पॉजिटिव एंगल ऑफ रोटेशन, यानी कि उसका एंगल ऑफ रोटेशन जो रहेगा पॉजिटिव रहेगा, माइनस मान लो 10 डिग्री, 20 डिग्री, 30 डिग्री, 40 डिग्री, कोई भी रहेगा लेकिन पॉजिटिव रहेगा. और जो रोटेट करता है लेफ्ट साइड की तरफ से, यानी कि एंटी डायरेक्शन, इसको अपन क्या बोलते हैं, लियो, LEAVO, लियो रोटेटर, जिसको डिनोट किया जाता है स्मॉल एल से, और इसका साइन होता है नेगेटिव. हमेशा एक बात याद रखना कि जो इनैंशियोमर्स होते हैं, जो ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड है आपका, उनकी ऑलमोस्ट सब प्रॉपर्टीज सेम होती है, हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था, ऑल प्रॉपर्टीज आर सेम, बट ओनली द ऑप्टिकल रोटेशन इज डिफरेंट ना. एक इनैंशियोमर का अगर पॉजिटिव में 50 जा रहा है तो दूसरे का -50 जाएगा, ठीक है, और इन दोनों को अगर हमने कंबाइन किया तो उसको अपन रेसिमिक मिक्सचर बोलते हैं. दैट ऑप्टिकल एक्टिविटी इज जस्ट शोन बाय अ कंपाउंड, जो क्या रहेगा आपका, द कंपाउंड शुड बी अ कायरल, कंपाउंड शुड बी कायरल, और वी कैन कॉल एज अ सिमेट्रिक कार्बन शुड बी देयर. अगर वो नहीं रहेगा, सो इट कैन नॉट बी रोटेट दैट लाइट नाउ, सो बेसिकली इट इज अ प्रॉपर्टी नाउ. और यहाँ पे जो लिया हमने, दिस इज व्हाट निकोल प्रिज्म. क्या कर रहा है, ऑर्डिनरी लाइट जो है आपका, जो हर तरफ पोलराइज लाइट को जो है वो हर डायरेक्शन में पोलराइजेशन उसका होगा, तो हम उसको क्या करते हैं, किसी एक डायरेक्शन में उसको लाते हैं, दैट इज कॉल्ड द प्लेन पोलराइज लाइट. ओके, एंड नाउ द नेक्स्ट पार्ट इज व्हाट, नेक्स्ट पार्ट क्या रहेगा आपका इसके अंदर, अब जो हमको निकालना क्या होता है, इसमें हमको निकालना होता है अल्फा, और जो पॉजिटिव नेगेटिव जो होते हैं ना, बेसिकली जब ऐसा हम लिखते हैं तो इसका मतलब होता है कि दिस इज व्हाट माय रेसिमिक मिक्सचर. रेसिमेट बोल सकते हो उसको, या आप रेसिमिक मिक्सचर बोल सकते हैं, यानी कि उसमें दोनों प्रेजेंट है, ठीक है. और रेसिमिक मिक्सचर का मतलब क्या हो जाएगा, वो उसका तो दोनों प्लस और माइनस हो जाएगा, यानी कि आपका अगर डेक्स्ट्रो 50 है तो लियो भी क्या हो जाएगा, -50 रहेगा, इट शुड बी 0, ठीक है. तो रेसिमिक मिक्सचर का जो रोटेशन कितना रहेगा, 0 रहेगा हमेशा. ओके, रिमेंबर दिस. नेक्स्ट पार्ट जो है इसके अंदर की, सबसे पहले हमने बोला है कि ऑर्डिनरी लाइट हमने यूज किया है, तो ऐसा लाइट जो हर डायरेक्शन में ऑसिलेट होता है, या ऐसा लाइट जिसका डायरेक्शन जो है वो हर अलग अलग डायरेक्शन में है, रैंडमली है, उसको हम बोलते हैं ऑर्डिनरी लाइट. और पोलराइज्ड लाइट ऐसा होता है जिसका एंगल ऑफ ऑसिलेशन जो है किसी पर्टिकुलर एक डायरेक्शन में रहेगा. सो डिफरेंस इन पोलराइज्ड लाइट. सो ऑर्डिनरी लाइट का मतलब ये होता है कि आप कोई भी व्हाइट लाइट ले सकते हैं, एग्जांपल आपकी घर का लाइट ले सकते हैं आप, सिंपल सिंपल एग्जांपल, जिसका जो ऑसिलेशन जो होगा वो हर डायरेक्शन में होता है, इन ऑल डायरेक्शन, and that's why that cannot be used now. लेकिन अगर हम उसको कन्वर्ट कर रहे हैं सबसे पहले, so that light should be passing through the prism, it will be converts that all ordinary toward the simple PPL now, that is called the plane polarized light. एक ऐसा लाइट जो आपको एक ही डायरेक्शन में आपको ऑसिलेट होगा, जैसे एग्जांपल यहाँ पे वर्टिकल दिखा हुआ है, उसको हम बोलते हैं प्लेन पोलराइज्ड लाइट. और अगर कोई कंपाउंड आपका इस लाइट को रोटेट कर रहा है, या तो टुवर्ड राइट साइड या तो टुवर्ड लेफ्ट साइड, तो उसको हम क्या बोलेंगे, डेक्स्ट्रो और लियो बोल सकते हैं. फिर इससे हम क्या निकालते हैं, ये जो इंस्ट्रूमेंट यहाँ पे लिखा हुआ है या जो हो रहा है यहाँ पे, इससे हम निकालते क्या, बाय यूजिंग दैट वी कैन फाइंड आउट द ऑप्टिकल रोटेशन, we can find out the optical rotation, and don't be confused with the capital D capital L with small n and small d. Now we already discussed, देखो what is the difference between small d small l and capital D capital L, anybody know about the difference? Okay, so basically that small d small l जो है
दीज आर एक्सपेरिमेंटल बेस्ड नॉमेनक्लेचर। ये कहाँ से आया तुम्हारे पास? ये एक्सपेरिमेंट के बाद वाले ना, एक्सपेरिमेंट के पहले तो हमने डिसाइड नहीं किया था इसको, सो दैट्स व्हाई इसको हम क्या बोलेंगे? दीज आर एक्सपेरिमेंटल बेस्ड नॉमेनक्लेचर, एक्सपेरिमेंटल बेस्ड नॉमेनक्लेचर। ओके, तो इतना याद रखना है आपको। मतलब जो स्मॉल डी है, इट स्टैंड फॉर डेक्स्ट्रो, दैट इज ऑल्सो ऑन द पॉजिटिव साइड, या फिर लिवो मतलब होता है नेगेटिव साइड। ये भी आपका जो है इंस्ट्रूमेंट से आता है। ओके, इसलिए इसको एक्सपेरिमेंटल बेस बोला गया है। अब जो क्वेश्चन रहा तुम्हारा कैपिटल डी और कैपिटल एल, कैपिटल डी कैपिटल एल जो है ये सिर्फ फिशर में यूज किया जाता है। फिशर, फिशर प्रोजेक्शन आपको निकालना है, ठीक है। सो ड्रॉ द फिशर प्रोजेक्शन, और एग्जांपल मैंने यहाँ पे लिखा है। सपोज एग्जांपल मेरे पास ये COH है, COH है, COH, you can take any example। सपोज अगर मैं यहाँ पे एक मिजोफॉर्म निकालता हूँ, ये वाला, दिस इज व्हाट मिजोफॉर्म। जितने हमने अभी तक पढ़े हैं आप उसमें से कोई भी एग्जांपल लेके इसको सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। यू कैन टेक एनी, ओके, दिस इज व्हाट OH, this is what OH, this is what H and this is what H। Now that capital D capital L जो है ये फिशर बेस्ड नॉमेनक्लेचर है। कौन सा नॉमेनक्लेचर ये? These are फिशर बेस्ड नॉमेनक्लेचर। इसका मतलब ये होता है कि these nomenclature are said to be the structural based nomenclature। स्ट्रक्चर के हिसाब से हम नॉमेनक्लेचर निकालते हैं, स्ट्रक्चर बेस्ड nomenclature। Sometimes they are going to ask what is alpha D, what is beta D, D ग्लूकोज अगर आपको पूछा गया, D ग्लिसरॉल्डिहाइड एग्जांपल, तो व्हाट इज द डी एंड व्हाट इज द डेल? कैपिटल डी की बात कर रहा हूँ। कैपिटल डी का मतलब ये होता है कि फिशर प्रोजेक्शन पे ऑन लोवेस्ट कायरल कार्बन, फिशर प्रोजेक्शन निकालने के बाद जो लोवेस्ट कायरल कार्बन होता है, दिस इज व्हाट लोवेस्ट कायरल कार्बन, दिस इज व्हाट लोवेस्ट कायरल कार्बन। आ रहा है क्या समझ में आपके? ओके, तो फिशर प्रोजेक्शन पे आपको सबसे पहले देखना होता है लोवेस्ट कायरल कार्बन के ऊपर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव सब्स्टिट्यूएंट्स या ग्रुप। कौन सा वाला? ऑन फिशर प्रोजेक्शन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। जैसे एग्जांपल यहाँ पे देखो नीचे में कौन है? हाइड्रोजन है और OH दिया हुआ है, तो OH आपका ग्रुप जो है वो क्या हो गया? मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव हो गया। इस केस में आपका, इस केस में कौन है आपका? OH कहाँ पे? राइट में है, लेफ्ट में? दोनों अलग अलग स्ट्रक्चर है ये। सो फिशर प्रोजेक्शन के ऊपर ऑन द लोवेस्ट कायरल कार्बन इफ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप इज प्रेजेंट ऑन अ राइट साइड, कॉल्ड एज अ डी। ओके, यहाँ पे क्या बोलना है इसको? मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम और ग्रुप कहाँ पे होना चाहिए? राइट साइड। और कैपिटल एल किसको बोलेंगे फिर? मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम और ग्रुप प्रेजेंट ऑन अ विच साइड? लेफ्ट साइड। तो इज देयर एनी डिफरेंस बिटवीन कैपिटल डी कैपिटल एल एंड स्मॉल डी स्मॉल एल? है ना, तो इसमें दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है। हम अभी जो पढ़ रहे हैं वो डेक्स्ट्रो लिवो ही अलग है। डेक्स्ट्रो लिवो इज पर्टिकुलरली फ्रॉम पोलरिमीटर, दैट्स व्हाई जब तक आप कंपाउंड को प्लेस नहीं करोगे उधर, तब तक वो आपको नहीं पता चलेगा कि वो स्मॉल डी है कि स्मॉल एल। और कैपिटल डी कैपिटल एल आपको पता कब चलता है? जब आप उसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करोगे। किसमें? फिशर के प्रोजेक्शन में, और कोई नहीं। ओके, व्हाट इट? नाउ बैक टू आवर पॉइंट, दैट इज व्हाट इज मीन बाय ऑप्टिकल रोटेशन। नाउ जो हम निकाल रहे हैं उस इंस्ट्रूमेंट से, जो एंगल ऑफ रोटेशन हमको निकालना है, वो निकाला जाता है ऑप्टिकल रोटेशन के फॉर्म में। जैसे यहाँ पे आइए, तो ये पूरा कंप्लीट पोलरिमीटर है ये। अब पोलरिमीटर का जो लास्ट आउटपुट जो है वो क्या है? ऑप्टिकल रोटेशन, दैट इज एंगल। और ऑप्टिकल रोटेशन को डिनोट किया जाता है अल्फा से। इसमें कई बार न्यूमेरिकल भी आते हैं। सो व्हाट इज दैट ऑप्टिकल रोटेशन? डिग्री ऑफ रोटेशन ऑफ पर्टिकुलरली दैट प्लेन पोलराइज्ड लाइट बाय कंपाउंड और बाय द सैंपल, कितना वो रोटेट हुआ है। सो दैट इज व्हाट optical rotation, rotation degree of rotation of particularly the plane polarized light, okay, by your compound or sample। ठीक है, इसको बोला जाता है ऑप्टिकल रोटेशन और इसको डिनोट किया जाता है अल्फा से। बराबर है। द नेक्स्ट पार्ट इज व्हाट यू नो द इनैंशियोमर्स। नाउ अब इनैंशियोमर्स क्या है आपके पास? दो टाइप्स के इनैंशियोमर्स होंगे। क्योंकि इनैंशियोमर्स मतलब क्या होते हैं? जो एक दूसरे के कैसे हो? मिरर इमेज हो। और इनैंशियोमर्स जो कंपाउंड के रहेंगे, दो इनैंशियोमर्स, वो क्या करते हैं? लाइट को, पीपीएल को रोटेट करेंगे, बट कैसे रोटेट करते हैं वो? इन अपोजिट डायरेक्शन। सो इनैंशियोमर्स ऑफ ए पर्टिकुलर कंपाउंड, मैं यहाँ पे लिखता हूँ E1 एंड E2, enantiomers of a compound
rotate plane polarized light in opposite direction. In what? Opposite. In what? Opposite direction. In same degree of rotation. In same degree of. इसका मतलब क्या हो गया कि जैसे एग्जांपल आपका कोई कंपाउंड है जिसमें एक कार्य सेंटर प्रेजेंट है. सपोज माय कंपाउंड इज दिस वन, और जिसमें क्या दिया हुआ है, एक कार्य सेंटर दिया हुआ है. लेट्स टेक द एग्जांपल ऑफ दिस वन. यहाँ पे ऐसा मेरा मॉलिक्यूल है, तो इसमें कार्य सेंटर प्रेजेंट है, यानी कि 2 टू द पावर n हो गया. 2 टू द पावर n मतलब 2 टू द पावर 1, मतलब दो आइसोमर हमको मिलेंगे. तो एक मानो E1 होगा तो दूसरा कौन होगा आपका E2. जब हम इस कंपाउंड को, मतलब इस कंपाउंड को जब हम पोलरीमीटर में रखेंगे तो क्या हो जाएगा, इसके दो फॉर्म पर, दैट इज कॉल्ड इनैंशियोमर्स. E1 क्या करेगा, लाइट को रोटेट करेगा, सपोज एग्जांपल क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो ये वाला करेगा उसको एंटी क्लॉकवाइज. मान लेते एग्जांपल पहले वाले का एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन जो है वो 15 डिग्री है, तो दूसरे का कितना हो जाएगा. मतलब इनैंशियोमर ऐसे कंपाउंड है जो रोटेट तो करते हैं किसको, पीपीएल को, प्लेन पोलराइज्ड लाइट को रोटेट करते हैं, लेकिन वो अपोजिट डायरेक्शन में. मतलब प्लस है तो दूसरे का कितना रहेगा, माइनस रहेगा. एक क्लॉकवाइज है तो दूसरा एंटी क्लॉकवाइज. इन सेम डिग्री ऑफ रोटेशन, मतलब दोनों का जो डिग्री ऑफ रोटेशन सेम रहेगा. अगर आप दोनों का आंसर निकालोगे तो कितना आएगा आंसर, 0. ओके. एग्जांपल अगर हम लेंगे, सपोज अगर मेरा एक कंपाउंड ये है E1 है, दिस इज सपोज एग्जांपल माय E1. सो व्हेन आई पास दिस लाइट थ्रू द E1, इट रोटेट पर्टिकुलर दैट लाइट टुवर्ड अ स्पेसिफिक एंगल. तो इसको अपन डेक्स्ट्रो बोल सकते हैं. दिस इज कॉल्ड एज अ डेक्स्ट्रो एंड द एंगल ऑफ रोटेशन शुड बी इन अ पॉजिटिव साइन. तो ये क्या कर रहा है आपका, ये जो है इस लाइट को इस तरह से रोटेट कर रहा है. तो इसलिए अपन इसको क्या बोला, डेक्स्ट्रो. सिमिलरली व्हाट इज लियो नाउ, सेम इनैंशियोमर का फॉर्म हमने लिया है, ये लिया है मैंने. दिस इज व्हाट E2 नाउ. This is what E2 now. I'm passing through the E2. This is what PPL, and here I'm going to call as a LIGO now. So ये कैसे होगा, एंटी क्लॉकवाइज. सो E1 E2 जो है ये दोनों इनैंशियोमर्स है, और जिनको अपन पॉजिटिव फॉर्म में लिखा है, दैट इज कॉल्ड एज अ रेसिमिक मिक्सचर. रेसिमिक मिक्सचर. अब हम बढ़ते हैं आगे. जैसे हमने ऑप्टिकल रोटेशन पढ़ा, ये तो पर्टिकुलरली क्या है, जस्ट द प्रॉपर्टी, डिग्री ऑफ रोटेशन, कितना रोटेट हो रहा है वो, दैट इज नथिंग बट द ऑप्टिकल रोटेशन. अब हम बात करने वाले कि स्पेसिफिक रोटेशन मतलब क्या होता है. स्पेसिफिक मतलब एक पर्टिकुलरली हमने कुछ अमाउंट में सैंपल लिया है, उसकी पाथ लेंथ भी पता है हमको, उसको बोलते हैं स्पेसिफिक. स्पेसिफिक रोटेशन. व्हाट इज दैट स्पेसिफिक रोटेशन. और इसको डिनोट करने के लिए हमने क्या किया है, अल्फा. बट हियर व्हाट, टी टाइम इज गिवन, एंड व्हाट द, sorry, temperature is given, and the wavelength is also given now. It's not the time, it's capital T. अगर आप small t लिखोगे तो आपको टाइम ही पता चलेगा. तो यहाँ पे आप कैपिटल T लिखो और यहाँ पे लिखो आप लैम्डा. तो इसका मतलब क्या होता है, पर्टिकुलर वेवलेंथ. एब्जॉर्बेंस है मतलब वेवलेंथ आ गया. तो यहाँ पे क्या क्या रहेगा आपका, अल्फा तो आपको पता है रोटेशन है, टी माने क्या हो गया आपका, इट इज अ पर्टिकुलर टेम्परेचर पे हम ये काम करेंगे, और लैम्डा माने होता है वेवलेंथ. ठीक है. सो जनरली यहाँ पे सोर्स जो है हम सोडियम वेपर लैंप यूज करते हैं, जो हमने सबसे पहले यूज किया था ना. सो सोर्स क्या रहेगा इस केस में आपका, सोर्स जो है ये सोडियम वेपर लैंप, नियर अबाउट 500 से 600 जो है. और सोडियम वेपर लैंप का जो वेवलेंथ होता है ना, वो नियर अबाउट होता है 589 नैनोमीटर. इतनी उसकी वेवलेंथ होती है. ठीक है. चलिए अब आगे हम बढ़ते हैं कि हम इसको स्पेसिफिकली इक्वेशन हमको लिखना है. इक्वेशन क्या है तुम्हारे पास, दिस अल्फा दैट इज रोटेशन, ऑप्टिकल रोटेशन. जब हम इसको स्पेसिफिक बोलेंगे तो क्या हो जाएगा, दिस इज व्हाट टेम्परेचर, दिस इज व्हाट द लैम्डा इज इक्वल टू अल्फा बाय C into L. This is the equation from which we can find out the specific rotation. अब स्पेसिफिक रोटेशन आपको निकालना है तो आपको क्या क्या पता होना चाहिए. अब यहाँ पे देखो क्या क्या लिखा है यहाँ पे, व्हाट इज अल्फा नाउ. अल्फा देखो, दिस अल्फा इज नथिंग बट द, जो हमको रोटेशन उधर से आया वो लिखना है यहाँ पे, दैट इज ऑप्टिकल रोटेशन. व्हाट इज सी नाउ, सी क्या रहता है जनरली, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द सैंपल, कितना आपका सैंपल जो है वो कॉन्सेंट्रेट है वो लिखना है आपको. और जनरली इसको लिखा जाता है ग्राम पर एमएल में, ग्राम पर एमएल, ऑलवेज रिमेंबर. नेक्स्ट जो होता है वो एल माने होता है, जो हमने बार बार ये बता रहे ना, ये वाला, दिस इज व्हाट द पोलरिमेट्रिक ट्यूब नाउ.
और इसकी जो लेंथ है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि लैम्बर्ट बीएस लॉ यहाँ पे फॉलो होता है। जितना ज्यादा लेंथ रहेगा उसका, बराबर है, उतना ज्यादा एब्जॉर्बेंस होगा। क्योंकि कैसा होता है, लेंथ बढ़ेगा तो क्या हो जाएगा, अमाउंट ऑफ सैंपल इज इंक्रीजेस। सपोज मानो एक की लेंथ इतनी है और एक की लेंथ जो है वो इतनी है, तो दोनों में क्या पता चलेगा आपको कि इसमें कम नंबर ऑफ पार्टिकल्स या कम नंबर ऑफ सैंपल आपका आएगा इधर, बट इसमें बहुत ज्यादा आएगा। तो लाइट जो है ये सबके थ्रू पास होके जाएगा ना आपका। सो एल इज प्रोपोर्शनल टू एब्जॉर्बेंस। अपने अगर लैम्बर्ट्स लॉ को पता होगा आपको या बीयर्स लॉ पता होगा, ए इज प्रोपोर्शनल टू द एप्सिलॉन सी इनटू एल नॉट। इट डिपेंड अपॉन कॉन्सेंट्रेशन एंड इट डिपेंड अपॉन द लेंथ ऑफ द योर ट्यूब नाउ। तो जितना ज्यादा बढ़ेगा उतना ज्यादा एब्जॉर्बेंस भी बढ़ेगा। इसलिए यहाँ पे जो लिखा हुआ है, तो एल माने क्या होता है, लेंथ ऑफ पोलरिमेट्रिक ट्यूब नाउ। एल क्या रहेगा आपका, इज लेंथ ऑफ पोलरिमेट्रिक या पोलरोमीटर ट्यूब। जनरली इसको डेसीमीटर में काउंट किया जाता है, और डेसीमीटर का मतलब क्या होता है, 1 डेसीमीटर इज इक्वल टू होता है 10 सेंटीमीटर। रिमेंबर द कन्वर्सेशन। और कॉन्सेंट्रेशन जो हमने लिया है वो लिया है ग्राम पर 100 ml में। किसमें लिया है, ग्राम पर 100 ml। ये है कॉन्सेंट्रेशन लिया हुआ, ठीक है। तो बेसिकली इसको बोला जाता है स्पेसिफिक रोटेशन। और अब हम ग्राम पर कितने में ले रहे कॉन्सेंट्रेशन, ग्राम पर 100 ml में लिया है, तो मैं इस इक्वेशन को इस तरह से लिख सकता हूँ, 100 इंटू अल्फा डिवाइड बाय सी इंटू एल। दिस इज व्हाट इन ग्राम पर ml, दैट इज व्हाट ग्राम पर 100 ml, ठीक है। तो ये जो अल्फा है ये हमारा स्पेसिफिक रोटेशन हो गया, जिसको हम पर्टिकुलर एक टेम्परेचर पे और एक वेवलेंथ पे हम उसको निकाल रहे हैं। और अल्फा ऑप्टिकल रोटेशन जो इंस्ट्रूमेंट से आता है, ठीक है। व्हाट इज द सी नाउ, सी इज जस्ट द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सैंपल, ओके। और एल जो है वो क्या होता है, इट इज अ पाथ लेंथ। पाथ लेंथ बोलो उसको, या फिर आप जो भी आप पोलरीमीटर यूज कर रहे हो उसकी, लेकिन आपको लेना किस में होता है ये, अगर आपको सेंटीमीटर में दिया जाएगा तो उसको डेसीमीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, ओके। इस पे न्यूमेरिकल्स कभी आते हैं, इसलिए छोटे छोटे न्यूमेरिकल्स होते, ज्यादा इसमें बहुत ज्यादा कुछ ऐसे मैं मेहनत नहीं करनी होती उसके अंदर, ठीक है। चलिए, अब कुछ फैक्टर्स भी हैं जो अफेक्ट करते हैं किसके ऊपर, फैक्टर्स विच आर अफेक्टिंग ऑन द स्पेसिफिक एंड ऑप्टिकल रोटेशन। वही जो बीयर्स लॉ मैंने आपको बताया, फैक्टर्स अफेक्टिंग ऑन स्पेसिफिक एंड ऑप्टिकल रोटेशन। सो फर्स्ट ऑफ ऑल एक है आपका, एक फैक्टर जो है वो पहला कि आपका नेचर ऑफ सैंपल कैसे रहेगा, ये बहुत जरूरी है। अगर आपका सैंपल ऑप्टिकली एक्टिव नहीं है तो ये सब कुछ होगा ही नहीं आपका। दूसरा जो इंपॉर्टेंट चीज है, दैट इज कॉल्ड द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द सैंपल। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सैंपल सॉल्यूशन, ये तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। थर्ड इंपॉर्टेंट है आपका लेंथ, लेंथ ऑफ पोलरिमेट्रिक ट्यूब, ये भी एक इंपॉर्टेंट पैरामीटर है उसका। उसके बाद है आपका ऑप्टिकल रोटेशन, मतलब किस डायरेक्शन में ये रोटेट हो रहा है आपका, ये उतना कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, वो तो होगा ही, ये नहीं लिखा तो चलेगा आपने। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट है वो है नेचर ऑफ सॉल्वेंट, आप उसको सॉल्वेंट कौन सा यूज कर रहे हैं, ऑल्सो व्हाट इंपॉर्टेंट ना। पोलर पोलर के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना सकता है, सो इट ऑल्सो इफेक्ट। एंड लास्ट वन जो है आपका, वो हम बता सकते हैं कि टेम्परेचर। सो टेम्परेचर इज ऑल्सो द इम्पोर्टेंट फेनोमेना। हर अलग अलग टेम्परेचर होता है, तो इस वजह से आप जो है अलग अलग जो है वो रोटेशन भी आपको देखने को मिलेगा यहाँ। These are the some factors, okay. We'll discuss the one problem regarding that. Now this is my question now. If a 5 gram of the sample is dissolved in, कितने ग्राम, 5 ग्राम सैंपल है आपके पास और आपने उसको डिसॉल्व किया है कितने में, 100 ml ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है। रिजल्टिंग ऑप्टिकल रोटेशन इज, रिजल्टिंग ऑप्टिकल रोटेशन ये आ रहा है इसका -13.56 डिग्री। नाउ कैलकुलेट द स्पेसिफिक रोटेशन, कैलकुलेट द वन स्पेसिफिक रोटेशन। तो यहाँ पे जो जो गिवन दिया है पहले वो लिख लो, क्या क्या दिया है आपको। एक तो दिया है आपको कंसंट्रेशन, कितना दिया है कंसंट्रेशन, 5 ग्राम इन 100 ml। एल आपको दिया है, लेंथ कितना दिया है उसने,
लेंथ कंसिडर कर लो कि 10 सेंटीमीटर है, चलिए नहीं, दिस इज व्हाट अल्फा, दिस इज व्हाट टी, दिस इज व्हाट लैम्बडा, 100 इंटू बाई सी इंटू एल, 100 इंटू माइनस कितना है 6 और इंटू 1 आई कितना आता है? आंसर विल बी -271.2। तो इतना उसका रहेगा उसको, ठीक है। और इसको ठीक है, चलिए उसके पहले अपने का क्लासिफाई करते हैं कुछ मॉलिक्यूल्स को। आपके पास एक चार्ट दिया हुआ है कि यू कैन एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ दैट चार्ट कैसे स्टीरियो आइसोमर्स को क्लासिफाई कर सकते हैं, ये हम पहले डिस्कस कर लेंगे। नाउ दैट स्टीरियो आइसोमर्स ओके। सो अब एग्जांपल क्या है ये, इसके लिए आपको थोड़ी सिमेट्री एलिमेंट्स पता होने चाहिए। अगर कोई मॉलिक्यूल कायरल है या अकायरल है, उसके बेस पे अपन पहले क्या करेंगे, इसको क्लासिफाई करेंगे। इफ योर मॉलिक्यूल इज अकायरल और इफ अ मॉलिक्यूल इज अ कायरल ना, ठीक है। अकायरल का तो सवाल ही नहीं है। और अकायरल को कैसे पता करते हैं? जिन मॉलिक्यूल्स में एसएन सिमेट्री होती है, एसएन सिमेट्री जिनमें रहेगी वो मॉलिक्यूल जनरली अकायरल होते हैं, और जिनमें एसएन सिमेट्री नहीं होती है वो मॉलिक्यूल्स होते हैं कायरल। अब एसएन सिमेट्री का मतलब क्या है? एसएन इम्प्रॉपर एक्सिस ऑफ रोटेशन। व्हाट इज एसएन? एसएन इज नथिंग बट द इम्प्रॉपर एक्सिस ऑफ रोटेशन। इसका मतलब होता है कि रोटेशन फॉलोड बाय रिफ्लेक्शन, रोटेशन फॉलोड बाय रिफ्लेक्शन, या रिफ्लेक्शन फॉलोड बाय रोटेशन। तो बेसिकली कोई सिमेट्री चाहिए नहीं, तभी तो आप मॉलिक्यूल रहेगा ना। और एसएन मतलब दोनों सिमेट्री प्रेजेंट है, इसलिए ये मॉलिक्यूल क्या हो जाएगा? इट इज अकायरल। और जिनमें एसएन नहीं है वो क्या हो जाएगा? वो कायरल हो जाएगा। हमने कायरल किसको बोला है? कि असिमेट्री को, जिसमें कोई सिमेट्री प्रेजेंट ना हो, उसी को क्या बोलते हैं अपन? कायरल बोलेंगे उसको अपन। टास्क क्या है? नेक्स्ट टास्क रहेगा आपका कि क्या इस कायरल मॉलिक्यूल में सीएन सिमेट्री प्रेजेंट है या नहीं है। कौन सी सिमेट्री? सीएन। सीएन का मतलब क्या होता है? रोटेशन। सीएन मतलब होता है रोटेशन, यानी कि एक्सिस ऑफ रोटेशन उसमें है या नहीं। इफ अगर है और या इफ अगर नहीं है तो उसको कैसे क्लासिफाई किया जाए? इफ अगर सीएन सिमेट्री प्रेजेंट है तो उस मॉलिक्यूल को बोला जाता है डिसिमेट्रिक मॉलिक्यूल। दैट मॉलिक्यूल इज कॉल्ड एज ए डिसिमेट्रिक मॉलिक्यूल। ऐसा समझ लो कि कंप्लीटली सिमेट्रिक नहीं है। और अगर आपका ये नहीं है तो ऐसे वाले मॉलिक्यूल को हम बोलते हैं असिमेट्रिक मॉलिक्यूल। देखो, और जिनमें है वो हो गया डिसिमेट्रिक, जिनमें नहीं है वो होगा असिमेट्रिक। अब असिमेट्रिक का मतलब एक ही हो गया कि जिसमें कोई सिमेट्री एलिमेंट प्रेजेंट नहीं, कोई भी नहीं है। इसका मतलब नो एनी सिमेट्री एलिमेंट इज प्रेजेंट, नो एनी सिमेट्री एलिमेंट इज प्रेजेंट। ऐसे वाले सारे मॉलिक्यूल जो है हम उसको असिमेट्रिक मॉलिक्यूल बोलते हैं। जैसे कार्य सेंटर आप कोई भी ले सकते हैं, यू कैन टेक एन एग्जांपल। बट ये जो डिसिमेट्रिक कंसेप्ट है ये थोड़ा सा बहुत गड़बड़ करता है। डिस्कस द डिसिमेट्रिक ना, व्हाट इज दैट डिसिमेट्रिक मॉलिक्यूल्स? मतलब डिसिमेट्रिक मॉलिक्यूल्स ऐसे मॉलिक्यूल जिनमें एसएन एसएन एब्सेंट है बट सीएन प्रेजेंट है, बट स्टिल द मॉलिक्यूल्स आर असिमेट्रिक। उसमें कायरल सेंटर नहीं है, इसका मतलब ये वाले मॉलिक्यूल्स में नो कायरल सेंटर, लेकिन कुछ और है। तो इन मॉलिक्यूल्स को क्लासिफाई कैसे किया जाता है कि दिस मॉलिक्यूल्स आर क्लासिफाइड ऑन टू बेसिस, विथ कायरल सेंटर, कुछ ऐसे वाले मॉलिक्यूल जिनमें कायरल सेंटर भी होगा, और कुछ ऐसे मॉलिक्यूल जिसमें कायरल सेंटर नहीं है, यानी कि विदाउट कायरल सेंटर। ओके, या फिर आप उसको विथ असिमेट्रिक सेंटर, विदाउट असिमेट्रिक सेंटर, ऐसा भी उसको बोल सकते हैं इसको, ठीक है। चलिए नाउ लेट्स टेक द एग्जांपल। यहाँ पे ऐसे मॉलिक्यूल का एग्जांपल जो है वो आता है, हमने उस दिन लिया था ये वाला, ऑलरेडी हमने ये वाला मॉलिक्यूल लिया है। सपोज एग्जांपल यहाँ पे मैंने मिथाइल ग्रुप लिखा है CH3, और यहाँ पे लिखा है मिथाइल CH3।
अब इस मॉलिक्यूल में कायरल सेंटर है, SN इसमें एब्सेंट है, बट CN प्रेजेंट। इस वाले मॉलिक्यूल में CN प्रेजेंट रहेगा, सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है, सेंटर ऑफ द रोट, सॉरी सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं, क्या बोल रहे हैं, हाँ सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है। सेंटर ऑफ सिमेट्री मतलब जो अपोजिट होती है, जैसे H और H अपोजिट है, CH3 अपोजिट है, बट स्टिल द मॉलिक्यूल शो द सिमेट्री, है ना, तो डिसिमेट्रिक में जाएगा। अब विदाउट कायरल सेंटर वाले मॉलिक्यूल मतलब होते हैं जो अलीन डेरिवेटिव्स है। अलीन मतलब देखो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, फिर कार्बन, प्रॉपरली सब्स्टिट्यूटेड अलीन, दिस इज A, दिस इज B, दिस इज A एंड दिस इज B ना। ये भी जो मॉलिक्यूल है आपका, वो भी किस में जाएगा, दैट आल्सो बिलोंग टू द एग्जांपल जो है आपका। और ये अलीन ले सकते हैं इसके साथ आप, विल टेक द अलीन, केमिस्ट्री ऑफ अलीन आपको पूरा पढ़ना है। विल टेक द केमिस्ट्री ऑफ बाइफिनिल, विल टेक द सिंपल केमिस्ट्री ऑफ स्पाइरो कंपाउंड्स, स्पाइरो कंपाउंड्स, ये सब जो एग्जांपल है ये किस में जाते हैं, ये जाते हैं आपके डिसिमेट्रिक मॉलिक्यूल विदाउट कायरल सेंटर, मतलब इसमें कायरल एक्सिस प्रेजेंट है। क्या प्रेजेंट रहेगा इसमें, मतलब कायरल सेंटर के अलावा भी और चीजें होती है, कॉल्ड द कायरल प्लेन, कायरल एक्सिस, है ना, तो वो हम पढ़ने हैं नेक्स्ट इसमें, ठीक है। बट बिफोर दैट आप यहाँ तक के समझ लो इसको। अब ये वाला मॉलिक्यूल कैसा हो सकता है कि इसमें को सी, सच में सी प्रेजेंट है, दिस मॉलिक्यूल हैव द सी, कैसे, लुक एट दिस वन, इफ आई पास द, इफ आई सॉरी इफ आई पास द एक्सिस थ्रू दिस वन और इसको मैं रोटेट, क्या हो जाएगा, इसको जैसे मैंने रोटेट किया तो ऑब्वियसली आपका मिथाइल कहाँ चला गया, मिथाइल कहाँ चला गया आपका, नीचे गया, ठीक है। मतलब चलिए आप ना देख, जैसे मैंने इसको रोटेट कर लिया, नहीं नहीं रोटेट मतलब ऐसा रोटेट किया, रोटेट करने से क्या हो गया, H यहाँ पे आ गया, और मान लेते मैं इसको H, ठीक है, और इसको H2 लिखता हूँ, तो ये H1 है मेरा। तो क्या हुआ यहाँ पे, देख रोटेट किया तो ये मिल गया मुझे, H2 कहाँ चले गए, पोजीशन बदल गई उनकी, तो ये क्या हुआ, रोटेशन हुआ। मैं क्या करूंगा, इसको रिफ्लेक्शन करूंगा। रिफ्लेक्शन मतलब क्या है, मिरर प्लेन। तो यहाँ पे क्या करना है हमको, हम वो मॉलिक्यूल्स पढ़ रहे हैं जो जिसमें SN प्रेजेंट नहीं है, तो जिसमें लेकिन CN प्रेजेंट है, तो CN प्रेजेंट है इसका मतलब वो मॉलिक्यूल चले जाएंगे आपके डिसिमेट्रिक में, और जिसमें कुछ भी नहीं है मतलब हो जाएगा असिमेट्रिक। जैसे एग्जांपल कायरल सेंटर, सो कायरल सेंटर के ऊपर कोई भी सिमेट्री एलिमेंट नहीं होती है, उसमें सिमेट्री एलिमेंट जो है वो जनरली नहीं होती है, ऐसे वाले मॉलिक्यूल्स को हम क्या बोलते हैं, असिमेट्रिक मॉलिक्यूल्स, ठीक है। क्या बोलेंगे इसको अपन, असिमेट्रिक मॉलिक्यूल्स। लेकिन जिनमें CN प्रेजेंट है, यहाँ पे देखो जिसमें CN प्रेजेंट है, जैसे इसको रोटेट किया हमने तो तुमको ये मिल गया, जैसे तुमने उसको रोटेट किया तुमको क्या मिला है, ये वाला मॉलिक्यूल मिला है, देखो यहाँ पे लिखा है मैंने कि पोजीशन यहाँ पे अलग अलग बदल गई, ठीक है, ऐसा। तो ऐसे वाले मॉलिक्यूल्स को हम बोल सकते हैं कि डिसिमेट्रिक मॉलिक्यूल्स विद कायरल सेंटर। और एक एग्जांपल आपके पास है जिसमें कायरल सेंटर नहीं होता है, सो दैट एग्जांपल्स आर अलीन, बाइफिनिल, स्पाइरो कंपाउंड। व्हाट आर अलीन नाउ, अलाइन मतलब कंटीन्यूअस डबल बॉन्ड वाले अलीन होते हैं। बाइफिनिल मतलब क्या हो गए, बाइफिनिल मतलब प्रॉपरली सब्स्टिट्यूटेड फिनिल रिंग, ये वाले, देखो ये इसको बोलते हैं बाइफिनिल, द केमिस्ट्री ऑफ बाइफिनिल। तो यहाँ पे ग्रुप्स रहेंगे, इसके बेस पर उसको क्लासिफाई। स्पाइरो कंपाउंड मतलब किसको बोलते हैं, जो किसी एक कार्बन से अटैच रहेंगे, इसको बोलते हैं स्पाइरो कंपाउंड्स, यहाँ उनका अटैचमेंट रहेगा, ऐसे वाले, ठीक है। तो इन तीनों भी एग्जांपल्स में जो है वो होता है कायरल एक्सिस, क्या प्रेजेंट रहेगा इसमें, कायरल एक्सिस। विदाउट कायरल सेंटर मतलब कायरल सेंटर नहीं है फिर भी वो कायरल कैसे हो सकते हैं, तो उसका मतलब होता है दे मस्ट हैव अदर देन कायरल सेंटर, इसका मतलब कायरल एक्सिस उसमें प्रेजेंट होगा। सो विल डिस्कस, ओके, नो प्रॉब्लम मैटर। चलिए यहाँ तक पहुंच गया, बट सब कैसा चाहिए प्रॉपर, देखो A B, इधर भी आपका, दिस इज कॉल्ड प्रॉपरली सब्स्टिट्यूटेड अलीन। अगर ए रहेंगे तो वो रहेगा क्या, नो, ओके, दिस शुड बी कीप इन माइंड। चलिए नेक्स्ट आपका जो है, जो हमने लास्ट वाला जो बचा था, ये क्या, असिमेट्रिक मॉलिक्यूल्स को भी क्लासिफाई कर सकते हैं क्या हम, यस। डिसिमेट्रिक को किया, वैसे असिमेट्रिक को भी आप क्लासिफाई कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट टू दैट, असिमेट्रिक मॉलिक्यूल्स। अब सिंपल बात है कि असिमेट्रिक मॉलिक्यूल्स मतलब वो मॉलिक्यूल जिनमें कायरल सेंटर प्रेजेंट होगा, ओके। फर्स्ट क्लासिफाइड इनटू दिस टू कैटेगरी with chiral center,
ओके, विदाउट कायरल सेंटर ओके, ये हो गया आपका असिमेट्रिक मॉलिक्यूल का क्लासिफिकेशन। अब विद कायरल क्या हो गया कि जिनमें कार्बन प्रेजेंट है, यानी कि ऐसे वाला कार्बन जिसमें चारों अलग अलग सब्स्टिट्यूट होने चाहिए, दैट विल बी कॉल्ड एज ए कायरल कार्बन। और विदाउट कायरल सेंटर में आपका आता है कि कंप्लीटली डिफरेंट टाइप्स ऑफ कार्बन ऑफ अलीन। एग्जांपल, कोई भी सब्स्टिट्यूट किसी के मैच नहीं होता है। दिस इज व्हाट Cl, दिस इज व्हाट मिथाइल, ऑलरेडी सबके सब दैट टाइप ऑफ द मॉलिक्यूल्स आर बिलोंग टू व्हाट दिस कैटेगरी। दैट इज ऑल ऑफ द सब्स्टिट्यूएंट्स आर डिफरेंट। तो जनरली क्या होता है कि ऐसे मॉलिक्यूल्स आप विदाउट कायरल सेंटर इधर वाले, ये वाले थोड़े से डिफिकल्ट रहेंगे क्योंकि इसको केमिस्ट्री पढ़नी होती है, अलीन, बाइफिनिल और स्पाइरो कंपाउंड। ओके, सो तो वो अकायरल हो जाते हैं डायरेक्टली, दे आर गोइंग टू बी कॉल्ड अकायरल, और तो है नहीं, दैट आर कॉल्ड एज अकायरल। फिर फर्दर क्लासिफाई किया हम ऑन द बेसिस ऑफ CN सिमेट्री। तो अगर उसमें CN प्रेजेंट है तो दैट विल बी कॉल्ड एज ए डीसिमेट्रिक मॉलिक्यूल्स, और जिसमें CN प्रेजेंट नहीं है असिमेट्रिक मॉलिक्यूल्स। तो डीसिमेट्रिक का मतलब क्या होता है कि डीसिमेट्रिक कुछ अलग गड़बड़ है। डीसिमेट्रिक में फिर से दो क्लासिफिकेशन आ जाएंगे, विद कायरल सेंटर, विदाउट कायरल सेंटर। विद कायरल सेंटर मतलब जिसमें आपका C2 प्रेजेंट होगा या C3 को रोटेशन एक्सिस प्रेजेंट होना चाहिए, जैसे एग्जांपल दिया यहाँ। और विदाउट कायरल सेंटर में तो आपके पास ये है अलीन, बाइफिनिल, स्पाइरो कंपाउंड्स, बट दे आर प्रॉपर्ली सब्स्टिट्यूटेड। यहाँ पे असिमेट्रिक मॉलिक्यूल का क्लासिफिकेशन क्या है, विद कायरल सेंटर, जो पहले एग्जांपल था वही है। और विदाउट में क्या आएगा आपका यहाँ पे कि सारे जनरली जो मैक्सिमम ग्रुप जो होते हैं वो डिफरेंट होते हैं इसके ऊपर। ऐसे वाले मॉलिक्यूल्स हम यहाँ पे कंसिडर करते हैं। तो इस पे अपन डिस्कस करने वाले हैं। इसमें बिफोर दैट यू जस्ट क्लासिफाई द स्टीरियो आइसोमर्स। ओके,